the person, what is he has done about you, what has he has did it for you, because you don't have time to look him. तो ठीक से बैठिए, इधर आ खिसक हाँ, और खिसक ठीक से बैठिए। तो इस तरह की कई सारी बातें होती है, हम इसी को बातों पर डिस्कस करेंगे। आगे आ जाइए, अब आप लड़का लोग उसमें निकल जाइए। हाँ, अब निकलिए लड़का लोग। हाँ, बीच में नहीं, यहाँ आ जाइए साइड, इधर खड़ा हो जाने के लिए। अच्छा, ये कौन है? बहुत बढ़िया, इससे छोटा नहीं था, उसको भी ले आते। ये तो बहुत हो गए 5 किलो, तुम वहाँ तो रोक रख रहे हैं। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन पहले हम देखेंगे ना। So today we must have to discuss about Teachers Day. What do you mean by Teachers Day, and why we should celebrate Teachers Day? When we are going to take any step in our life, we really wanted to do something. We must and we need to the support of the person that is behind the teacher. The teacher is the person. They always encourage you. They always teach you how can you be the great personality in the world. How can be the great personality in the world, as well as you can be a great human being in the world. So we can say that behind the person who has much more, take care, and who has much more, what can we say that, great efforts just because of the teacher. Now you can sit here. Hey, dear, my young lady. आप लोग तो वही है ना, तो 1 घंटा पहले आए थे, फिर चले गए थे क्या? सर आप कैसे देखे, हम तो चढ़ में है। ध्यान देंगे। Now listen to me. So what I am going to tell you, at first we must have to know about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. Today, now we are here to celebrate the Teachers Day on the occasion of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan birthday. When we discuss why we celebrate Teachers Day, then I would like to tell you you cannot mention any one reason. We have a lack of reason we can mention, and due to it we celebrate Teachers Day. At first I would like to talk about the journey of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So now the life begins with this thing, and we know that whatever the caste we belong, as well as Hindu, as well as Muslim, as well as Sikh, as well as Buddhist, whatever you can mention, every person they celebrate and they respect some kindness of respect, some kindness of great respect to their students, their teachers, their a great personality. They really appreciate from the bottom of their heart. Okay. So in the whole world, but the different types of persons celebrating different types of castes, different types of creeds, and different types of people. They always show some respect to their teachers. But we are really very great to know about it. This is very much more pleasant and proud moment for us, because when we look around the life of the Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, at that time I would like to mention you he is the person, they are not we can say that they are, he is the person who was the former president of our India, and as well as the vice president of India also. Okay. So Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji was born in India on 5th September 1888. Okay. So on the behalf of his birthday, we are going to celebrate as a Teachers Day. अब यहाँ पर बात आता है कि उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं, क्योंकि आज बिहार की सरकार की जो स्थिति है
वो तो देख लीजिए सारे मास्टर का क्या हाल है। मास्टर एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, सिस्टम एक तरफ है। अब उनका मास्टर के लिए सरकार के नजर में कोई 0% का भी वैल्यू नहीं है। तो हम लोगों के लिए और सारे शिक्षक के लिए ये कुछ इस प्रकार के ग्रेट पर्सनैलिटी रहते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, जिन्होंने शिक्षक के लिए हो, एज वेल एज स्टूडेंट के लिए हो, या फिर अपने समाज के लिए हो, नेशन के लिए हो, जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी याद में हम लोग भी आगे अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं। रिचार्ज से हमारा तात्पर्य है हम हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं। ओके, नाउ he was born in India on 5th September 1888. Due to it, we are celebrated as a Teachers' Day. I would like to tell you a quote given by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The world's #1 teacher are our parents. According to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, our world's #1 teachers are our parents, like mother and father. You know, what can you absorb from and what can you learn from these steps and these types of quotes? I would like to mention you, I would like to explain these types of quotes, in which types of philosophy and which types of knowledge it is going to be delivered, या going to be distributed amongst the student. तो ये बतलाते हैं कि हमारे जीवन में नो डाउट की कई सारे शिक्षक की अहम भूमिकाएं होती है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो हमारे माता और पिता है। ओके, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है नो डाउट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता पिता से भी ऊपर की दर्जा देते हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड की सारी बंदिशें, वर्ल्ड की सारी बाधाएं, वर्ल्ड की सारी कंक्लूजन, जितना भी चीज हो, वो सारी चीजों से जो ऊपर होंगे वो एक ही व्यक्ति होंगे, वो होंगे आवर टीचर्स। सो व्हाट काइंड ऑफ टीचर इट कुडंट बी मैटर, जस्ट यू मस्ट हैव टू शो सम रिस्पेक्ट, जस्ट यू मस्ट हैव टू शो सम योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। Only today, where are we now just because of our teachers? Don't forget you, teachers always praise him because he can teach you with happily. Okay? And when you going to show some respectness, when you going to show some kind of respect to their teacher, the teacher must be much more happy. Not the view of only the matter of you respect him only. When you gifted anything as a gift, at the time the teacher must be happy. But I really tell you कि a teacher at the time should be the much more pleased and much more happy when a student could be described as a well mannered, a student could be presented as a well mannered, a student could be get a higher education in his exam, in his career, on the peak point of his career. When he got, at the time the teacher must be happy, and they only tell one thing: he is my teacher and I am going to be much more pleased. Okay, I think many of us don't know about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, because he is the personality. They have different types of roles in his life. He is only the persons. Listen to me. He is only the persons. They have nominated 27 times for the Nobel Prize. ये ऐसे व्यक्ति है जिनको 27 बार क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है किसके लिए, नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार नहीं मिला इनको, क्योंकि इनको इससे भी ग्रेट और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया, which is known as a भारत रत्न। तो भारत रत्न हमारे देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है, जो अवार्ड इनको मिल गया, और इनसे ये
कमीभूत हो गए, इनसे ये बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हुए, और ये प्रसन्न हो भी या ना भी हो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसके असली हकदार थे। हमें लगता है कि ये इसके असली हकदार थे, तो इनको जितने भी अवार्ड से सम्मानित किया जाए वो कम है। एंड फाइनली he was honored with the Bharat Ratna in 1952 to 1954, और इनका जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है वो 1952 से 1954 के बीच के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और they always praise the student in the field of education, as well as they always what can you say, really thinking about his nation, about his career, about his students, about his younger persons, what could be happen in our country in such a way. They always making a plan to develop our country, to develop our nation, to develop our students. When Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji took the oath of the presidency of the India at the time, the date was 1962, और उन्होंने जब प्रेसिडेंसी पद की शपथ लिए थे वो 1962 की ड्यूरेशन थी। याद रखेंगे आप लोग। He was known as a great scientist and a scholar and philosophical person also. And you know that he is a teacher, but you don't know anything about it. If you say that only, if he is only a teacher, then you don't know about anything. Because he is only the mastermind person. They have such a what can you say, the beauty with brain. उनकी जो ब्रेन थी वो सुंदरता के साथ साथ उनमें जो ब्रेन थी वो कमाल का ब्रेन था। We can say that we can call him as a intellectual person. We can call him as a intelligence of the house. एक जो घर का जो इंटेलिजेंस होता है, जो पावर होता है, we can say that the what can you say that transformer of intelligence, transformer of intellectual पर्सन, बुद्धिजीवी व्यक्ति में से एक थे, वन ऑफ देम थे, क्योंकि वो शिक्षक के साथ साथ साइंटिस्ट और उसके साथ साथ और भी क्या थे, फिलोसोफर, लोगों को मोटिवेट भी करते थे, और एक ग्रेट लीडर थे जो हमेशा अपने राष्ट्र, अपने कंट्री, अपने समाज के प्रति सोचने के लिए तत्पर रहते थे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हिम a quote was given as, you must have to look, a great teacher should be young. According to him, a great teacher should be young, full of manners, personalities, such as great humanity, and who can act a great role to develop the country. Okay, according to him, who is the great teacher, and the features of a great teacher must be one quality which is about a young. And it is not enough to a great teacher. We can say that only young should be. If anybody is young, it could be a great teacher. We cannot say that. According to him, you must have to look each and every word. He said that a great teacher should be young and well-mannered personalities, such as great humanity, and who can act a great role to develop the country. एक समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाने वाले में से होता है, ऐसा होना चाहिए शिक्षक को। ग्रेट मैनर्स का होना चाहिए, अच्छे आचरण का होना चाहिए, और इन तरह की बातें आ जाती है सामने। फिर आगे बात करते हैं कि आखिर हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह नहीं होगी जिसके वजह से ये सेलिब्रेशन हुआ। तो मैंने बताया कि उनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन एक और चीज है जो बहुत बढ़िया है, वो ये है कि जब ये मैसूर यूनिवर्सिटी में थे, मैसूर जानते हैं ना, जब ये मैसूर यूनिवर्सिटी में थे तो मैसूर से स्टेशन आना था, यूनिवर्सिटी से स्टेशन, तो ये अपने कॉलेज टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर थे। Listen to me. So I am going to share a news about him. I would like to tell you what is the positive impact of
great personality who has much more, influence with his ideas, with his own ideas, with his, great acts. So according to him, he had such a mind and such a beauty. Due to it, every students admire him in college time. और होता क्या है सुनेंगे, तो जब सबको ये पता चला कि कल ये कॉलेज छोड़ के हमेशा के लिए जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो जाने वाले हैं, तो विद्यार्थियों ने विचारा कि क्यों ना हम शिक्षक का आदर करें। और हमने जबकि वो उनके सहपाठी थे, उनके साथ पढ़ते थे और वो कॉलेज टाइम में भी बहुत पढ़ते थे। मैं आपको ये बात की जानकारी दे रहा हूँ। तो जब वो सुबह उठे और घर से निकले और स्टेशन तक जाना था, तो उनके घर से लेकर के पूरा स्टेशन तक क्या कर दिया गया था, विद्यार्थियों ने और उनके जो मित्र थे वो क्या कर दिए थे, पूरे फूल का रोड बना दिया था। अब वो जहाँ जहाँ लाते थे वो पूरा फूल का निशान। सो नाउ यू कैन look the importance of a teacher. What is the importance of a teacher and what is the importance of a such a powerful person in his friends as well as students. और भी ध्यान देंगे थोड़ी सी। According to his father, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो पिताजी थे, उनके अनुसार वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो क्या बने, प्रीस्ट बने, पुजारी बने। लेकिन ये पुजारी नहीं बनना चाहते थे और अंत यही हुआ कि ये पुजारी नहीं बने और ये बहुत बड़े टीचर्स के रूप में जाने गए। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इनके वजह से ये टीचर्स के लिए जाने गए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तब से नहीं बता पाया, कि एक बार ऐसे जब वो शिक्षक थे तो विद्यार्थी, मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो पावर, जो वॉइस होती थी, जो स्पीच होती थी, इतना पावर होता था उसमें कि लोगों को इंचार्ट करता था अपनी तरफ, लोगों को सुनने के लिए बात कर दिया जाता था और इनसे जनता प्रभावित होती थी। तो विद्यार्थियों ने विचारा कि सर हम आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे कुछ बात किया होंगे और बोले हाँ ठीक है मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर कहा और आज यही शिक्षक दिवस पूरे इंडिया में फिफ्थ सितंबर को मनाया जाता है। और बहुत सारा ऐसा भी कंट्री है जहाँ पर भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता है 5 सितंबर को ही, क्योंकि शिक्षक दिवस सारे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग कुछ समय है। लेकिन हमारे इंडिया में ये एक ही दिन मनाया जाता है, वो है 5 सितंबर। ओके, I would like to say to you one more point, which is he is as much as popular. We can look here. A well-known Professor Mr. H.N.S. Penny. Okay, a well-known Professor Mr. H.N.S. Penny was much more influenced with the lecture of Dr. Radhakrishnan ji. So he established London University and Cheers. उनके नाम पर उन्होंने उनकी जो प्रभावशाली था, उनकी जो बोलने की तरीका था, उनके जो बोलने का क्या कह सकते हैं रिदम था, और उनके अंदर जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को देखते हुए जो फॉरेन के एक प्रोफेसर मिस्टर एचएन जी थे, उनसे प्रभावित हो गए और उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया इनके नाम पे, इनके ही बातों पे, और उनका नाम का चेयर भी रखवाया गया। हालांकि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद नाइट के अवार्ड इन 1931. नाउ यू कैन गेस द पॉपुलैरिटी ऑफ द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, नॉट ओनली इन इंडिया आल्सो एज वेल एज इन फॉरेन कंट्री आल्सो। यहाँ तो जो उनका पॉपुलैरिटी था वो था ही, खास करके जब वो विदेश गए और विदेश में जब उनके भाषण को सुने तो इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए कि उनके नाम पर वो सब कुछ करने का कोशिश कर लिए। और वहाँ के ब्रिटिश सरकार जो थे उनके द्वारा इनको एक प्राइज से सम्मानित किया गया जिसका नाम है नाइट के अवार्ड। क्या नाम है? नाइट के अवार्ड। कितना ईस्वी में? 1931 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोलते हैं, The true teachers
you know, according to him, true means सच्चा शिक्षक वो है those who help us think through our lives, जो हमें क्या करता है, हमें अपने बारे में सोचने के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए हमें हेल्प करता है, वही मदद करता है। अब मेरे कहने का मतलब हमारे से तात्पर्य है नॉट ओनली यू ऑल्सो, नॉट ओनली वी ऑल्सो, इट मीन्स वी ऑल आवर, ओके। इस सब के बारे में, हम सब के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे नेशन के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन से दैट। According to him, while Dr. APJ Abdul Kalam ji said that your best teacher is your last mistake. According to him, जब हम कोई पिछली गलती किए होते हैं और उससे वो सबक ले लेते हैं तो ये हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। ये APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है। और अगर कहीं नहीं जानते होंगे तो वहाँ देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में है वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। शिक्षक के लिए इन तीनों में से मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो, या फिर भगत सिंह जी हो, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, उनसे बढ़ के कोई और मोटिवेटर हो ही नहीं सकता। और खास करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो जीवन पर्यंत अपनी मृत्यु के दिन भी वो शिक्षक, स्टूडेंट, गुड लर्नर बने रहे और IIT में बेंगलुरु में बच्चों के बीच वो अपना भाषण दे ही रहे थे। उसी बीच उनकी हार्ट अटैक आ जाने से अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक गहरा संवेदन और शोक प्रतीक हुआ। खैर, हम सब आए हैं, एक दिन हम सब भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारी जो बेरोजगारी है, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो रूढ़िवादिता है, हम उन सब चीज़ों को खत्म करेंगे, हम उन सब चीज़ों को मिटा देंगे जिसके वजह से चाहे वो महिलाएं हो, लड़कियां हो जो हायर एजुकेशन अडॉप्ट नहीं कर पाती है, चाहे वो पुअर हो, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था ये है कि उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी एक बार बोले थे कि if the poor cannot come to the education, उन्होंने बोले कि if the poor cannot come to education, education must reach them at the club, in the bakery, factory and elsewhere. अब इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते थे कि अगर किसी गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकता है, शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकता है, तो शिक्षा को उनके तक पहुंचाई जा सकती है। कैसे? वैसे ही जैसे फैक्ट्री में बेकरी बनाया जाता है, रोटी